এ অবসা গরুরে হে কেমনে দেব পারি রে দিবানিশি কান্দে রে হেন দেহের কোলে বইয়া। মাইক্রোফোন সবাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। সো আমার নাম রাজু উপাধ্যায়, এই নামে আমি পরিচিত। আলিপুরদুয়ারে থাকি, দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি। বাংলা তো আমার মনে হয় সবার জন্য সহজ। If not, then it would be easier for me to teach English also because I was the teacher of English. So জন্মসূত্রে ইংরেজি বাংলা কোনোটাই আমার ভাষা নয়, সুতরাং প্রবলেম। বাংলা হলে আমার মনে হয় সকলের জন্য সুবিধা হয়। আমি বাংলাটা জানি, ভালোই বলতে পারি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এবারে যিনি বলে গেলেন, ভাই আপনার নাম সাত্যকী কোথায়? সাত্যকী, সাত্যকী, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সো এখানে আজকে আমরা যারা জড়ো হয়েছি, আপনাদের মতো আমিও খুব কমই জানি পিপলস লিটারারি ফেস্টিভ্যালের ব্যাপারে। আমার ছোট ভাই ভাতৃপ্রতিম সুমন, ও আমাকে যখন বললো যে এরকম ব্যাপার হতে যাচ্ছে, তা আমি ভাবলাম যে কোথায় বিরাট আকারে কিছু একটা হই হই রই রই, ভালো বুঝতে পারছি না কিছু না। মাঝে মাঝে ফোনে ওই দেবারতের সঙ্গে কথা হচ্ছে, দুবার তিনবার কথা হয়েছে, তাতে করে একটা আবছা ধারণা, দু চারটা টেমপ্লেট দেখে আমার এখানে আসা। সাত্যকীর কথায় আমি যেটা শুনলাম, হি ওয়াজ টেলিং যে লিটারেচার যে কোনো ধরনের ডেমোক্রেটিক যে আমাদের রাইটস অ্যান্ড যে অধিকারগুলো আমরা দীর্ঘদিনে অর্জন করেছি সেগুলো এখন বিপন্ন। এই তো ছোট ব্যাপারটা সাত্যকী, এটা আমরা রং। এবার ওখানে একটা বক্তব্য ছিল যে হাঙরে সব খেয়ে ফেললো। তো ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হাঙর খাবে না তো কি করবে? হাঙর খাবে যদি এটা হাঙর হয়। আমরা বিপন্ন হব, বিপন্ন আমাদের হতেই হবে। আমরা ছোট মাছ, আমরা অর্গানাইজ হতে জানি না, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি না, আমরা আমাদের সময় দিতে জানি না। আমরা ব্যস্ত আমাদের ক্যারিয়ার গঠনে, জীবন গঠনে, অর্থ উপার্জনে, তার জন্য সমস্ত কিছু বেচতে আমরা ব্যস্ত, মানে রাজি। কথাগুলো আপনার ভালো লাগলেও আমি আনন্দিত, না ভালো লাগলে করার নেই। এটা বাস্তব, এটা সত্য। এখন এটা তো কর্পোরেট হাউস নয় যেখানে আমি বলবো अगर बात पसंद आई तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करो। আমি কর্পোরেট ট্রেনিং করে থাকি জানি, तो এরকম ভাবে বলি अगर मेरी बात पसंद आई हो तो अपना हाथ का इस्तेमाल करो, दोनों हाथ को ठोकने से ताली बजता है, मुझे आनंद आती है। তো আমার ধারণা আপনারা বুঝতে পারছেন, হাঙর খাবে, হাঙরের খাওয়াই ওর কাজ। আর এই হাঙরগুলো তো আরো সাংঘাতিক, তারা ম্যানেজার নিযুক্ত করতে পারে। ম্যানেজার হওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি মারামারি। এখন আপনারা হবেন না, তাহলে লড়াই করুন, না হলে মরুন। দেবশ্বাস পেতেন কেন ভাই? আমার খাবে। সাত্যকী ইশারায় বলেছে, আমি ইশারায় বললাম, বুঝলে বুঝুন, না বুঝলে কিছু করার নেই। এর বেশি বলার অধিকার বোধহয় আমাদের নেই, আমিও বলবো না। ব্যাপারটা আমিও খুব ভালো বুঝি, ওই অল্প অল্প বুঝি বলেই এসছি, নাহলে আমিও বুর্জোলাই ফিল করি। গাড়ি চালিয়ে এসছি, গাড়িটাও আমার। ছেলেটা কলেজে পড়ায়, সে বাঙালি হয়েছে পুরোটাই। আমি জন্মসূত্রে বাঙালি না। এই টিকা ভাই বসে আছে, ও চেহারা বলছে ও নেপালি, আমার চেহারাটা বলছে না আমিও নেপালি বাচ্চা। What the hell can I do? আমরা তো আবার চেহারা দেখে, পদবী দেখে, শুধু জাত নয় ধর্ম বুঝে ফেলি। अच्छा सैयद है, नहीं मैं वो सैयद नहीं हूं। अच्छा वो दूसरा वाला भी है। अच्छा आप झा हैं, अच्छा आप उपाध्याय हैं, अच्छा आपने चौधरी, अच्छा आप चक्रवर्ती, अच्छा आपने भट्टाचार्य जी। Am I wrong? তো এরকম একটা আবহে, এরকম একটা পরিবেশ, সাত্যকী ভাই তাদের যা করার তারা করবে। আপনার যা করার আপনার চেষ্টা করছেন, আমরা যা করার আমরা করব। আমাকে আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে যে পিপল লিটারারি ফেস্টে এই চারিদিকে যে সাহিত্য যেভাবে জন্মাচ্ছে এবং তার যে গ্রোথ করছে, যে গ্রোথ হচ্ছে, সে সাদ্রি হোক, আমাদের এখানে সাদ্রি ভাষীর আসার কথা ছিল, তার বাড়িতে একটা সহসা বিপদ হওয়াতে সে আসতে পারেনি। তো তারা তাদের মনের কথা যেভাবে বলছেন, টিকা ভাই যেভাবে বলছেন, সেটার মধ্যে একটা মিলন। এবং বোধহয় এই যে সোকল্ড হেজিমনি চলছে, শব্দটা বোধহয় শুনলাম একটু আগে,
তো তার বিরুদ্ধে একটা জনগণের যে আওয়াজটা আসছে সেটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরাটাই বোধহয় এই ফেস্টের উদ্দেশ্য। যদি আমি ঠিক হয়ে থাকি সার্থকই আমাকে বলবেন যে হ্যাঁ ইয়া, তো ওটা মাথায় রেখে আমি আমাদের প্রশ্নগুলো করছি। আমার সামনে যিনি আছেন তো আমি আগে যদি আপনারা इंट्रोड्यूस करनो আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ मोहम्मद बताएं जो बताने की बात हुआ मुझे तो बांग्ला आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। आप लोगों के साथ मैं हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग जितना हिंदी जानते हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ ये भी परेशानी है। ये एक समस्या भी है। जब भी मैं साउथ में गया वहाँ पे लिंक लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है। जब भी मैं नॉर्थ में गया वहाँ पे हिंदी लिंक लैंग्वेज बन जाता है। तो कुछ लैंग्वेज को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है इस वजह से। मैं टिका हुआ है, अभी मैं कालिम्पोंग से आया हूँ। लिटरेचर साहित्य मेरा एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। जब मैं छोटा था तभी से मैं साहित्य के प्रति रुचि रखता आया हूँ। और आज मेरे लिए, जब मैं छोटा था तब तो मेरे लिए साहित्य इतना मायना नहीं रखता था, क्योंकि लोग लिखते थे पढ़ते थे उसके लिए मैं लिखा करता था। लेकिन बाद में मुझे एक जिम्मेवारी की तरह लगा और आज मेरे लिए लिटरेचर जो भी है ये एक मेरी एक्टिविज्म का हिस्सा है। तो मैं खुद को एक कवि से ज़्यादा सांस्कृतिक कर्मी मानता हूँ। मेरा परिचय इतना ही है। बाकी जो भी यहाँ पे प्रश्न आएगा उसके ऊपर मैं बात आप लोगों से करता चला जाऊँगा। अब तपाईले अहिले भर्खर यो जिम्मेवारीको कुरा गर्नुभयो। अब यो जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो जिम्मेवारी के जिम्मेवारी अलिकति बताइदिनु पर्यो। हिन्दीमा असुविधा भयो भने नेपाली भने मैं जितना हो सके मैं हिंदी में बोलने की कोशिश আমি যেটা মানে জিজ্ঞেস করলাম ওনার আলোচনা একটু আগে একটা দায়িত্বশীলতার কথাই উনি বলেছেন যে আমার কাছে এখন সাহিত্য একটা দায়িত্ব। আমি যখন ছোট ছিলাম উনি যেটা বললেন হিন্দিতে, তখন আমি পড়তাম লিখতাম, সবাই লিখে ভালো লাগে, সবাই ভালোবাসে, সবাই বলে বাহ বাহ বাহ, এই তো ব্যাপারটা ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমার কাছে তা নয়। উনি বলেন এখন আমার কাছে দুটো শব্দ মিস করলেন। একটা হলো এটা আমার কাছে একটা দায়িত্ব, জিম্মেওয়ারি হ্যাঁ মেরে লিয়ে। দ্বিতীয় উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে তার পাশাপাশি আমি এখন একজন অ্যাক্টিভিস্ট, এটা আমার কাছে একটা অ্যাক্টিভিজম। তো আমি প্রথমে যাচ্ছি জিম্মেवारी, তারপরে কসো ये जिम्मेवारी লিখে ক্লিয়ার করুন, মানে হচ্ছে जिम्मेवारी বিষয়ে যে বলেন এটা একটু বোঝান। एक वक्त था जब साहित्य हमारी जो पूर्वीय सिद्धांत है उसके अनुसार ये सिर्फ कुछ नाम कमाने की, यश कमाने की, धन कमाने की ऐसी कुछ समझा जाता था। तो आज जो डेमोक्रेटिक एज हम मानते हैं, आज पहले से ज़्यादा नैरेटिव की लड़ाई होना शुरू हो गया है हमारे समाज में। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़, एक लेखक या सर्जक को दो चीज़ पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है कि हम जो नैरेटिव को आगे ला रहे हैं वो नैरेटिव सत्ता द्वारा प्रायोजित नैरेटिव है या जनता के हक हित पे हक हित वाला नैरेटिव है। तो इस तरह का स्ट्रगल का एक सिचुएशन बन गया है। सत्ता में भी बहुत सारी परतें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं अभी। अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारा नैरेटिव्स वहाँ से भी आते हैं, देशी सत्ता भी है, तो देश के अंदर भी बहुत सारे सत्ताएं हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इन सभी नैरेटिव्स के अंदर आम लोगों की भावना, आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आम लोगों की जो नैरेटिव्स है, बहुत बार वो चीज़ कुचलता रहता है। तो एक सचेत सर्जक को सबसे पहले उस युग चेतना, वो वक्त की चेतना, वो समय की समझ जरूरी होती है। और उसके साथ साथ एक सर्जक को जनता के प्रति जिम्मेवार होना और जनता का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ मैं इस चीज़ को मैं जिम्मेवारी बहुत मानता हूँ। উনি যেটা বললেন সেটা হলো উনি নেপালি সাহিত্যের লোক। এবারে নেপালি সাহিত্য বলতে আমাদের প্রথমে ভানু
এবারে আপনাদের বলি আদিকবি ভানুভক্ত যাকে বলা হয়েছে তার সঙ্গে রিলেটেড একটা গল্প আপনাদের জানেন। ইনি ঘাস কাটতেন, তাকে নেপালি ভাষায় ঘাসি বলে। বাংলায় যারা ঘাস কাটে তাদের ঘাসুরে এরকম কিছু হয়তো বলে কিংবা বলে না আমার জানা নেই। দ্য পিপল যারা জঙ্গলে গিয়ে ঘাস কেটে এনে ঘাস বিক্রি করে জীবন চালাতো, কারণ নেপালি যেখানে থাকেন জনজাতি সেখানে প্রচুর পরিমাণে গরু মহিষ ইত্যাদি থাকে। মদেশি এই শব্দটা ওখানে ইউজ করা হয়, হয় না? মদেশির অঞ্চল নেপালি সবাই গাই বাসি অঞ্চল। এবার সেখানে উনি ঘাস কেটে আনতেন। তো এবারে উনি একদিন ঘাস কেটে ফিরছেন, তো সেখানে একজনের সঙ্গে ওনার দেখা হয় না। উনি একদিন আমাদের ভানুভক্ত ঘাসি ছিলেন না, উনি একদিন ফিরছেন শহর থেকে তার গ্রামে, সেখানে একজন ঘাসির সঙ্গে তার দেখা হয়। তো সেই ঘাসি সেখানে বসেছিল, সে ঘাস কেটে এনে সেই ঘাসের পয়সা দিয়ে সে কুয়ো, গ্রামে একটি কুয়ো খনন করাচ্ছে। সে he was spending his money for digging একটা ওয়েল হবে, কুয়ো হবে তার জন্য। তো ঘাসি তোমাকে তাকে জিজ্ঞেস করে, ঘাসিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন যে তুমি এগুলো করছো কেন? বলে দেখো খাবো দাবো মরে যাবো তো সবাই করে, আমি এটা করছি যাতে আমার নাম হয়, লোকে যেন মনে রাখে যে এই লোকটা সমাজের জন্য কিছু করে গেছিল। তাতে করে ভানুভক্ত কবির মনে হয় তখন তিনি আদি কবি ভানুভক্ত হননি, তার মনে হয় তাহলে আমি একটা কিছু করি যাতে আমার নাম হয়। এবং ওনার সেই ছত্রের লেখা লাইন ছাড়া লাইন তো থাকা হল ঘাসিলে মানে এবারে ওইখান থেকে শুরু হয় যে আমিও তাহলে নাম হবে, আমার তাহলে নাম হওয়া একটা ব্যাপার ছিল। ওটা টিকা ভাই খুব সুন্দর করে বললেন যে শুরুতে আমারও এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে আমার নাম হবে, লোকে আমায় জানবে। কিন্তু তারপরে আমি ধীরে ধীরে এটা আবিষ্কার করলাম আমার একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব বলতে গিয়ে উনি বললেন যে আমরা যে সমাজে বাস করি সেই সমাজে শাসক বর্গ যারা আছেন, সেটা দেশীয় এবং অন্তর্রাষ্ট্রীয়, তাদের মধ্যে অনেকগুলো স্তর আছে। স্তরে স্তরে সেই শাসক বর্গের বিভিন্ন রকম শোষণের চেহারা আছে, হয় না? সেটা আমি বুঝে আমি এটা বুঝেছি যে আমার পিপলস যে ন্যারেটিভ, জনগণের যে ন্যারেটিভ, সেই ন্যারেটিভটা তুলে ধরা দরকার। अब यो अलिकति स्पष्ट गर्नु पर्यो। पिपल्स न्यारेटिभ तपाईँ कसरी त्यसको एक्टिभिजम भन्ने सबै तपाईँले यो शब्द युज गर्नुभयो। बांग्लाয় বলতে উনি আমি জিজ্ঞেস করছি যে আপনি এটা বলেন, এটা একটু পরিষ্কার বলুন যে পিপলস ন্যারেটিভটা আপনি কিভাবে তুলে ধরছেন আপনার লেখায়, বা আপনার समसामयिक আর কেউ আছে किना तारा किभाবে করছেন। यो जो पिपल्सको जो लडाई छ यसमा तपाईँ जस्तो अरु पनि छन् भने को छन्, कस्तो छन्, कसरी हुँदैछ, यो अलिकति बताउनुहोस्। एक साथ बहुत सारा प्रश्न आ गया है। तो हाँ, रिलेटेड भी है। पीपल्स जो नैरेटिव की बात मैंने किया, ये मतलब हमारी जो समाज है, हमारी समाज में इस्टेब्लिशमेंट या सत्ता अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी हित में, अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी विचार या तो नैरेटिव या हम उसे इतिवृत्त भी कह सकते हैं, तो समाज में बहुत सारी माध्यम से वो लोग परिचालित करते रहते हैं। चाहे मीडिया हो, चाहे कोई उन लोगों की अभी तो वो पहले ही यहाँ पे बात हो रही थी कि वो लोग अपना कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अपना ही एक क्या सांस्कृतिक मोर्चा भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम के जरिए अपना विचार वो जनता को थोपने का काम करते हैं, और आम लोगों की जो भावुकता है उस भावुकता को दोहन करते हैं। तो एक सर्जक को सत्ता और जनता के बीच की वो दूरियां, सत्ता और जनता के बीच की जो लकीरें हैं, अंतर विरोध है, अंतर संघर्ष है, या समाज में जितने भी अंतर संघर्ष है, उसको समझना एक मतलब हर सर्जक वो समझकर ही लिखते हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब भी कोई सर्जक जनता के प्रति दायित्वशील हो जाते हैं तो वो लोग कम से कम उन सत्ता द्वारा स्थापित, सत्ता द्वारा प्रायोजित आख्यान की वो रूट को वो पहचानने की कम से कम कोशिश करते हैं। इसी तरह से समाज में हमारी जो साहित्य सिर्जनाएं हैं उसके अंदर वो चेतना संस्कृति
कलात्मक रूप से प्रकट भी होती है। तो इनके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न और जोड़ दिए थे कि मतलब नेपाली साहित्य में अभी इस तरह की सोच की हालत क्या है। ये चीज आधुनिक जो समाज है, आधुनिक समाज के आते ही साहित्य का प्रयोजन के सवाल पे बहुत सारे वर्ष हुए हैं। सिर्फ आधुनिक काल में ही नहीं, बहुत आगे से ही साहित्य की प्रयोजन और साहित्य को एक सिर्फ कलात्मक कला का एक रूप के रूप में देखने वालों के बीच बहुत आगे से ये वैचारिक मतभेद चलता आया है। तो नेपाली साहित्य के अंदर भी उसका प्रभाव है। बहुत सारे लोग उसको सिर्फ एक कला रूप मानते हैं। उसी के साथ साथ ऐसे भी सर्जक है जो साहित्य के अंदर ऑब्जेक्टिव वस्तु सत्य या तो सामाजिक सच्चाइयों को, सामाजिक आख्यानों को साहित्य के जरिए आगे लाना चाहिए, ऐसा मानने वाले भी बहुत सारे सर्जक हैं। और ये हर जाति, हर समाज के साहित्य में ये दो रूप या उस दो रूप से बने हुए बहुत सारे रूप हम लोगों को दिखाई देता है। तो नेपाली साहित्य में सबसे पहले तो जब शायद जनसांस्कृतिक, बहुत सारे भारत में जनसांस्कृतिक आंदोलन हुए थे, उसका प्रभाव 1960 से थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था। काम प्रोग्रेसिव लिटरेचर के लिए काम तो 1940 से ही शुरू हुआ था, लेकिन उसका मतलब आम लोगों के पास उसे साहित्य को एक जनता की आवश्यकता के साथ जनता को देने का काम या जनता के माझ में पहुंचाने की जो अभियान है वो 1960s के दौर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था। उसी वक्त मतलब इंडियन पीपल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन जैसे लोग भी मतलब नाटक और दूसरे माध्यम से आम लोगों के पास जा रहे थे। लेकिन आज कुछ वक्त बदल गया। आज आवाज तो वही है, आवाज जनता की आवाज साहित्य में आ रही है, लेकिन साहित्य और जनता के बीच की जो फासला है वो भी एक समस्या, एक चुनौती जैसा बना हुआ है। और दूसरी तरफ है कि जन साहित्य हम जिसे बोल रहे हैं उसको हमने जनता के बीच में लाने की ऐसा मतलब पहल या तो मूवमेंट का अभाव सिर्फ नेपाली साहित्य लिटरेचर में नहीं, बाकी देश की विभिन्न जातियां, विभिन्न राष्ट्रीयता के बीच भी आज यही समस्या बना हुआ है। हाँ, डिजिटल माध्यम से कुछ जा रहे हैं, लेकिन जितने भी डिजिटल माध्यम है वो आम लोगों की मतलब एक आज भी आम लोगों का जो चेतना संस्कृति है उसको प्रभावित करने वाला माध्यम नहीं है। आज भी ज़्यादातर लोग टेलीविज़न देखते हैं और टीवी की आख्यान को सच समझ बैठते हैं और उसी से ही देश का राजनीति तक भी चल रहा है। तो ऐसे माध्यम पर पूरा सत्ताधारियों का कब्जा है। ये सब जो भी जानते हैं वो भी इस स्थिति से जनता को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये एक चुनौती भी है, लेकिन इसी चुनौती के साथ मुझे लगता है कि लेखक, सर्जक सभी को और भी प्रतिबद्धता के साथ सर्जन कार्य आगे बढ़ाना और आम लोगों के साथ जुड़ने का ये और भी एक अवसर जैसा भी ये चुनौती देता है। मतलब तुम्हें भय अनुसार अब 8 और 8 से बनने जो छन ग्रुप टू द पॉइंट आया बने अब एक काम करते हैं, हिंदी में बात करते हैं हम भी, तो उनके लिए भी एक बार में बात होता है, फिर इसको प्रयासित करो। ये अब उन्होंने जो कहा थोड़ा देर पहले कि अब समाज में एक धारणा प्रचलित है कि आर्ट जो है वो आर्ट के लिए होना चाहिए, जिसे हम लोग आर्ट फॉर आर्ट से कहते हैं, आप जानते हैं उसे। अब ये जो है आर्ट फॉर लाइफ सेक वाले जो कहते हैं कि हम एक भी लाइन लिखेंगे तो उस लिए लिखेंगे जो हमारे काम आए, स्वार्थ की बात हो रही है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। जो पहले डिबेट्स थे आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ और पीपल्स की आर्ट, आज आके ऐसा वक्त आ गया कि मतलब आर्ट वालों को भी ये वो विचारों से भाग के नहीं जा पा रहे हैं और विचार जो कह रहे हैं वो भी आर्ट से भाग कर नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से
आज के दौर में बहुत सारे सर्जक ऐसा मानने लग गए हैं कि ये जो आर्ट है और ये जो मतलब विचारधारा है एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि इसको हम लोग अलग अलग करके उसकी स्वरूप को और उसकी विचार को हम लोग अलग अलग उसकी मतलब एक मूल्य को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। आज के दौर में सभी सर्जक कम से कम ये समझ गए। लेकिन आप जब भी पीपल की बात करेंगे पहले तो स्लोगन कह के भगा दिया जाता था, ये स्लोगन हो गया, दिस इज नॉट लिटरेचर, दिस इज मिया स्लोगन, यही था पहले का कहना। अभी तो सीधा वो दाग देंगे आपको, आप राष्ट्र। देखिए बात बहुत था, मैं तो मेरा 60 साल का उम्र में बहुत सारे बात देखते देखते बड़ा हुआ। पहले मैंने शाम में बात सुना, बहुत आकर्षित हुआ, ये करते करते अभी आके राष्ट्रवाद सुन रहा हूँ। बीच के बात हटाइए, तो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं बात दो। अभी जो राष्ट्रवादी है वो अगर आपने जनता की बात की भैया तो छुट्टी हो गया आपका। हाँ, अब इसको आप कैसे टैकल करते हैं? अब यहाँ पर जाके 8 और 8 से वाले, हाँ ये सब ये आप समझ गए, थैंक यू। बताइए आप लोग जितने भी संघर्ष हैं, एक चीज है कि हर सर्जक मतलब वो विचारधारात्मक संघर्ष के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हर कोई एक दार्शनिक नहीं होते। लिखने वाले लोग अगर सब पहले दार्शनिक होता तो शायद उनकी रचना भी दूसरी तरह की होती। तो एक लेखक आम लोगों की जो समस्या है उसको उससे जुड़कर उस जो जनता की अपेक्षाएं उसके साथ चल के लोग अपना धारणा व्यक्त करते हैं या तो अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसे में कभी कभी आपने जो कहा कि वो नारा जैसा, मतलब जितने भी नारा है अगर कलात्मक रूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है तो वही नारा जाके कविता भी बनता है। अगर कोई कविता जिसमें कलात्मक निकाल दिया जाए, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें अगर उसमें हो, तो मतलब वो चीज थोड़ा आम लोगों को उसे मतलब साहित्य समझना ये मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब कोई भी चीज जनता की जितनी भी अपेक्षाएं हैं उसको कलात्मक रूप से ही प्रकट करना एक चीज है, वो जरूरी भी है। इसीलिए तो आप कलाकार हैं। जी जी जी, इसीलिए कलाकार है, नहीं तो ये कला ही नहीं रहेगी। नहीं तो अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा आग्रह करूंगा यहाँ पर इस जगह में, जो आपने वो जो राष्ट्र की बात कही, हाँ जी, राष्ट्र की परिभाषाएं वही चीज है कि कौन दे रहा है ये, मतलब राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लोग क्या समझते हैं। भारत में 3 तरह की राष्ट्रवाद हमने 1940s के दशक में ही देखा, जब देश स्वाधीन ही नहीं हुआ था। एक राष्ट्रवाद था, यही राष्ट्रवाद जो आज शासन कर रहा है, जिसके लिए सिर्फ एक ही मजहब, एक ही धर्म, एक राष्ट्र था। और एक राष्ट्रवादी था जिसके लिए कुछ देश के संपन्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग ही एक राष्ट्र था। और एक ऐसे भी थे जिसके लिए आम मजदूर वर्ग, मेहनतकश एक राष्ट्र था। तो राष्ट्र की जो परिभाषाएं हैं वो व्यक्ति के हिसाब से ही अगर आप पूछने चले जाएंगे तो हजारों परिभाषा मिलेगी। तो इसमें से हमें राष्ट्र क्या चीज है वो समझने की, वो परखने की जो चेतना है, उसको एक सर्जक को, लेखक को चिंतन करना आज के लिए ज्यादा जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। एकदम सही। आपने एक बात पहले ही स्पष्ट कर दिया, उन्होंने एक बात पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने जब शुरू किया था, जब उनका शुरुआत हुई थी, उन दिनों जैसे सब कोई शुरुआत करते हैं, आपने भी शुरुआत की, लेकिन अभी आपको ये स्पष्ट हो गया है कि आपको एक एक्टिविज्म का रोल प्ले करना है और आपको एक जिम्मेवारी की तरह साहित्य को लेना है, और ये समझ और परख जरूर आपने है, होना ही चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपकी अपने लेख की कुछ लाइनें अगर हमें सुनाएं और हम भी उसका कुछ। इसके लिए मैंने अभी आपको तैयारी नहीं की है, जो भी हो याद से कविता वगैरह कुछ अगर कुछ भी है। हाँ, আমি এটা মানে বললাম সেটা হচ্ছে যে ওনার লেখা কিছু যদি উনি পড়ে শোনান আমাদের। आप में से कितने लोग नेपाली समझते हैं? मैं बताइए ना,
আমি বলে দেবো, হ্যাঁ, যারা বুঝেন ভালো, না বুঝেন রাজনীতি এগুলো এত বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, যে এটা যে লিটারারি ফেস্টিভ্যাল সেটাই আমরা ভুলে যাচ্ছি। তা এখন দেখবেন যে আমরা কাব্যই বলি আর উপন্যাসেই বলি, রিদিমটাই কিন্তু আসল রিদিম। হ্যাঁ, ভাষার মধ্যে যদি রিদিম না থাকে তাহলে ওটার প্রসাদ গুণ থাকবে। আর রিদিমই হলো প্রাণ, হলো সুরীতি। এইবারে আমি একটা গান গাবো। প্রথমে আমি উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ মেলা, কেমন? এ ভবসা গরুরে কেমনে দেব পারি রে, দিবানিশি কান্দে রেন দেহের কুলে বইয়া, ও মনোরে যারাই ছিল চতুর নাইয়া তারাই গেল বাইয়া রে, তারাই গেল বাইয়া। আমি অধম রইলাম পরে ভাঙা তরে লইয়া রে দুরন্ত পরবাসে। এইবারে উত্তরে আমাদের রাজবংশী কালচারে আসে। কেমন করিয়া দৌড়িয়া হব পার। और मैं आप लोगों को मेरी ये एक नेपाली कविता आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। एउटा सानो गाउँबाट, एक छोटा सा गाउँ से। म एक सानो गाउँमा उभिएको छु, एकतिर मन्दिर अर्कोतिर भट्टी पसल र माझमा उभिएर म नशाग्रस्त गाउँलेको नाडी छामिरहेछु। छुट्याउनै गाह्रो नशा ईश्वरको र नशा रक्सीको, दुवै बलियो दुवै उस्तै उस्तो। দেখছেন, আমি একটি গ্রামে, একদিকে মন্দির, সেখানে গ্রামবাসী, আরেকদিকে ভট্টিখানা মানে সুরিখানা। গ্রামবাসী নেশায় চুর। আমি ওদের হাতের কবজি ধরে ধরে, এই শিরাগুলো ধরে ধরে বোঝার চেষ্টা করছি কোনটা নেশার শিরা, কোনটা ধর্মের শিরা, কোথায় ঈশ্বর আছেন। আমি গ্রামে সকলের হাতের শিরা ধরে ধরে বোঝবার চেষ্টা করছি। প্লিজ মানুষ আগে। म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु, एकतिर स्कुल अर्कोतिर फैलिएको खेतबारी छ र माझमा उभिएर म खेतबाट स्कुल गइरहेका अनि स्कुल छोडेर खेतमा पसिरहेका ससाना बाल बालिकाको अनुहारमा खोजिरहेछु उज्यालो। ठम्ब्याउनै गाह्रो कुन कति उज्यालो, एउटै लाग्छ मूल्य गाउँमा फल्ने शिक्षा अनि अन्नको। আমি একটা ছোট্ট গ্রামে, ওই গ্রামে বা অন্য একটা গ্রামে দাঁড়িয়ে, একদিকে স্কুল আরেকদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, চাষের মাঠ। সেখানে দেখছি চাষের মাঠ থেকে স্কুলে বাচ্চারা যাচ্ছে, আবার বাচ্চারা স্কুল থেকে ছেড়ে ক্ষেতের মাঠে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা যাচ্ছে। আলাদাই করতে পারছি না কার চেহারায় কোনটা আনন্দ কোনটা দুঃখ। म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु, एकतिर गोरु अर्कोतिर हली उभिएको छ। हली हली अर्कोतिर गोरु गोरु। अच्छा। माझमा उभिएर तिनका गर्दनमा भासिएका जुवा र घाउका खाटाको लम्बाइ नापिरहेछु। खुट्याउनै गाह्रो, एकछिन है, खुट्याउनै गाह्रो। यहाँ रोक्नुहोस्, मैले क्लियर गर्दै फेरि अगाडि जान्छ, म फेरि बिर्सिन्छु। মাঝখানে থামানো ওনাকে, এইটুকুন বলে দিই। ওই একই দিয়ে শুরু। আমি একটি ছোট্ট গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে আমার এক পাশে দুটো গরু, আর অন্যদিকে তার হাল এবং জোয়াল। এই জোয়ালের জন্য যে গরুর ঘাড়ে যে ঘা হয়েছে, দগদগে ঘা, সেই ঘা আমি মাপবার চেষ্টা করছি, আলাদা করতে পারছি না। खुट्याउनै गाह्रो। हली माटो खन्दैछन् कि आफ्नै मोटो? আরে বাপরে।
বুঝতে পারছি না যে এই হল দিয়ে মানে মাটির চাষ হচ্ছে নাকি নিজের মুটু মানে আত্মা आत्मा आत्मा मन म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु। एकतिर सहर अर्कोतिर जङ्गल पस्ने बाटो छ। माझमा बसेर त्यो बाटो हिँड्ने पाइला गन्दैछु, छक्क पर्छु। कसरी जानवरका पाइलाहरू सहरतिर, मान्छेका पाइलाहरू जङ्गलतिर फर्किएका छन्। আমি একটি ছোট্ট গ্রামে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে দিয়ে দুটো রাস্তা গেছে, একটা রাস্তা গ্রামের দিকে শহরের দিকে গেছে, আর একটি রাস্তা গেছে জঙ্গলের দিকে। আমি পায়ের ছাপ গণবার চেষ্টা করছি, ছাপগুলো দেখে অবাক হচ্ছি। জানোয়ারের ছাপগুলো শহরের দিকে যাচ্ছে, मान्छेका আর पाइला মানুষের পায়ের ছাপগুলো জঙ্গলের दिखे যাচ্ছে, है ना? हाँ, म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु। एकतिर भाषण अर्कोतिर भोक उभिएको छ। माझमा म उभिएर पुञ्जीका भगवानहरूको परियोजना, सत्ताका भगवानहरूको ऐन, बन्दुकका भगवानहरूको परेड हेर्दैछु। गाउँलाई युद्धको कोसेली दिएर गाउँमा बम बारुद रोपेर पर्खिरहेछ देश, चिर शान्तिको स्वस्थ सन्तान। यो अनुच्छेदलाई दुई पालीमा भन्नु पर्यो। पहिला आधा भन्नुहोस्, फेरि यो भयङ्कर छ। यो म एउटा सानो गाउँमा उभिएको छु। एकतिर भाषण अर्कोतिर भोक उभिएको छ। एक मिनट, म एउटा सानो गाउँमा उभिरहेको छु। मतलब আমি একটি ছোট্ট গ্রামে, যে লাইন দিয়ে ওনার প্রতিটা স্তবক শুরু সেরকম এখানে শুরু হয়েছে, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। তাই সেই গ্রামের একतिर भाषण একদিকে খুব ভাষণ চলছে, अर्कोतिर भोक उभिएको छ। অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষরা সব অপেক্ষা করছে। माझमा हेर्दैछु আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখছি पुञ्जीका भगवानहरूको परियोजना, सत्ताका भगवानहरूको ऐन, बन्दुकका भगवानहरूको परेड हेर्दैछु। गाउँलाई युद्धको कोसेली दिएर गाउँमा बम बारुद रोपेर पर्खिरहेछ देश, चिर शान्तिको स्वस्थ सन्तान। म एक सानो गाउँमा उभिएको छु, जहाँ एकतिर ऐन अर्कोतिर विद्रोह सँगै हुर्किरहेछ, जहाँ एउटा बाटो सहर अर्को जङ्गल पसेको छ। যারা বুঝতে পারেননি শেষের দিকটা একটু পরে বলে দিই। সেখানে উনি বললেন যে আমি একটি গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে একদিকে ভাষণ চলছে, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত পেট। সেখানে সত্তাধারী শান্তির বাণী নিয়ে আসা মানুষগুলো বারুদ এবং বম দিয়ে গ্রামে ভরে দিয়েছে। তারা চিরশান্তির বাণী শোনাচ্ছে আমাদের। আমরা সেই শান্তির বাণী শুনছি। সেই গ্রামের থেকেই দুটো রাস্তা, একটা জঙ্গলের দিকে গেছে, আরেকটা আবার শহরের দিকে গেছে। আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি।